Fine, we'll start with the next chapter from the organic chemistry, and this is the lengthiest and also the important high weightage chapter. But though it is lengthiest, it is also the easiest chapter because there are only reactions which you are supposed to remember. मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा आपको मेमोरी यूज करना पड़ेगा. So you need to practice all the reactions properly. So as in when the lecture gets completed, please do the practice of all the reactions and then start solving the questions from there. Okay, so starting with the introduction to the name, aldehyde, ketones, and carboxylic acids. The reason all the three compounds are being studied together is the presence of a common functional group in them, and that is carbonide. Aldehyde, ketones, and carboxylic acids all have a common functional group, that is C double bond O. So how do we represent the aldehydes? Aldehyde का general structure is represented as R C double bond O H. Ketones is represented as R C double bond O R dash. The main difference is here the carbonyl is bonded to the H. Here it is bonded to the carbon chain, that is R dash. And for acids, on one side we have an alkyl and on the other side we have OH. But the important thing is they all have the presence of carbonyl in them, and that is the reason we call them as carbonyl compounds. Now under this, we are going to continue with the aldehyde ketone introduction, and then we will talk about the carboxylic acids. So this chapter we are going to study in two parts. Part 1 covering aldehydes and ketones. Let's start with the detailing of these two compounds. So as I've discussed, aldehydes are the organic compounds containing the functional group of C double bond OH. Now this aldehydic functional group is called as formyl, or it is also named as oxo. अब ये नाम कहाँ यूज होता है? So in the nomenclature of organic compounds, when there is aldehyde and a higher priority functional group, let's say carboxylic acid present, in that scenario, the aldehyde functional group will be acting as the substituent. And as a substituent, it could be named as formyl or oxo. Formyl कब लिखते हैं, oxo कब लिखते हैं? I will discuss with the examples. But this, remember this, it is a name of the substituent. जब aldehyde as a substituent काम करेगा, it will be named as formyl or oxo. Then the general structure of aldehydes is represented as R C double bond O H, as I've already stated. Now this is for aliphatic aldehydes. Aromatic hoga, we have the benzene ring attached with the CHO, which is also famously called benzaldehyde. Benzene के ऊपर CHO is called benzaldehyde. Then the molecular formula to be derived for aliphatic aldehyde. R का जो alkyl group है, molecular formula is CnH2n plus 1. Alkyl is represented as CnH2n plus 1. And आगे we have the aldehyde functional group, that is CHO. अब the carbon N and the carbon 1 to be added together. तो जब मैं दोनों ऐड करूंगा तो I'll get CN plus 1. हाइड्रोजन भी ऐड किया तो H2N plus 2. I can write 2 common into N plus 1 and O. Now observation, for every N plus 1 carbon, हाइड्रोजन डबल हो रहा है, and therefore इसका molecular formula हो जाएगा CN
H2NO। और याद रखोगे आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एज अल्कीन ओ। अल्कीन ओ, CnH2n अल्कीन का फॉर्मूला है। सो इन सिंपल वर्ड्स, aldehydes have a molecular formula alkene O। ओके, अब कीटोन्स की बात करते हैं। तो कीटोन्स में द फंक्शनल ग्रुप इज जस्ट द कार्बोनाइल ग्रुप, जस्ट द कार्बोनाइल ग्रुप। The functional group is C double bond O, which is called as a substituent keto या oxo। ये नाम कब यूज करना है? जब कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा। जनरल स्ट्रक्चर, अब इसमें जनरल स्ट्रक्चर के केस में we can have two alkyl groups attached to the carbonyl, and that can be same or different. When the alkyl groups are same, we call ketones to be symmetrical or simple ketone, symmetrical or simple ketone when they are same. And if they are different on either sides of the carbonyl, R and R dash, it's called unsymmetrical, unsymmetrical or mixed ketone. याद रहेगा तो SI classification we had done in one more compound, ethers में। रॉर, ROR होगा तो सिंपल ईथर बोलते हैं, ROR डैश होगा तो मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। तो दैट्स हाउ द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर भी on one side of the carbonyl I can have the aryl or the aromatic group, and I can have both sides aromatic group on the carbonyl। मतलब ये हो गया मेरा aromatic ketones का कॉन्सेप्ट। देन कमिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगेन एलिफेटिक के लिए डिराइव होता है। तो एलिफेटिक में टू अल्काइल ग्रुप्स R एंड R डैश, दो अल्काइल ग्रुप्स ऑलवेज कपल टू गिव, टू अल्काइल ग्रुप्स का कपलिंग गिव्स व्हाट कंपाउंड? यस प्लीज रिस्पॉन्ड। high order हायर अल्केन्स, एंड दैट्स द वर्ड्स रिएक्शन कॉन्सेप्ट। तो R और R की जगह पे आई कैन रिप्लेस इट विद अल्केन फॉर्मूला विच इज CnH2n+2, एंड देन वी हैव द कार्बोनाइल ग्रुप विच इज Cu। अगेन सेम फंडा, यहाँ पे मेरे पास n कार्बन है, यहाँ पे 1 है, साथ में लिखे तो CN+1 H, 2n+2 में 2 कॉमन लिखो तो n+1 इंटू O। अगेन व्हाट वी सी इज हर n+1 के लिए हाइड्रोजन डबल है, तो आई कैन री राइट इट एज CnH2nO, अगेन रिमेंबर्ड एज alkene। Now what's the observation with respect to the molecular formula of aldehyde ketones? They have the same molecular formula but Yes. different structural formula, and the difference is in its same molecular formula, different structural formula, and the difference in its functional group. functional group। That is why they are एक दूसरे के Functional isomers. functional isomers। So aldehyde ketones we are going to study together because of the reason they are functional isomers. They are functional isomers। Am I clear on this? Yes? Yes, sir. Now nomenclature of all the three compounds we are going to study together। तो acids भी यहाँ पर हम include करने वाले हैं in the naming part। Along with the naming, there are lot of things which I am going to cover, so please pay attention। Now सबसे पहले if I talk about aldehydes का nomenclature, then the common name of aldehyde is based on prefixes, based on prefixes। So aldehyde में we have the structure as R with a CHO। So based on R, we have designated prefixes which we are supposed to use, जिसके बारे में we had talked, लेकिन इसको और डिटेल में पढ़ेंगे।
जब RH होता है तो the structure becomes H with a CHO. And what is the first aldehyde named as in common name? Formaldehyde. Formaldehyde. यानी जो prefix है वो हमारा form होता है. And then we add the suffix aldehyde to get the name formaldehyde. उसके बाद when this R is methyl Acid. acid and we get the name acetaldehyde. Then moving ahead with the ethyl group C2H5 propion and we get the name propionaldehyde. Then we have a propyl group. अब प्रोपाइल के Butyl. लिए ब्यूटर होता है BUTYR. देन आगे बढ़ेंगे ब्यूटाइल के लिए वी हैव वैलेर. ब्यूटाइल के लिए वी हैव वैलेर. एंड C5H11 पेंटाइल के लिए वी हैव केप्रो. केप्रो. एंड इनके अलावा इफ आई टॉक अबाउट द अरोमैटिक वन C6H5 फिनाइल ग्रुप जब लगाते हैं अरोमैटिक तो बेंजो या बेंज वर्ड यूज करते हैं. बेंज या बेंजो. जैसे फॉर aldehyde we call it as benz aldehyde, but for carboxylic acid we call it as benzoic acid. So now this particular table is most crucial to understand the common name of aldehydes. And in fact ये prefixes वाले नाम सिर्फ aldehydes के लिए नहीं, carboxylic acid में भी यूज होते हैं, एस्टर में भी यूज होते हैं. देन एसिड के अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे असाइल क्लोराइड, देन अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड. All these compounds have the name based on the prefix. मतलब एक बार के लिए ये 7 prefixes अगर आपने याद रख दिए तो आगे के सारे nomenclature are based on this only. जैसे if you know अगर मेरे पास RH है and the carboxylic acid is attached to it, what's the name of that acid? H वाला acid is called Form. formic acid. तो प्रीफिक्स हमारा वही है, खाली सफिक्स चेंज होने वाला है. ठीक है. H वाला असाइल क्लोराइड क्या होता है? H वाला असाइल क्लोराइड Formal chloride. फॉर्माइल क्लोराइड. और H वाला अमाइड क्या होता है? जस्ट ऐड द वर्ड अमाइड. ना, फॉर्माइड नहीं, फॉर्म अमाइड. और एसिड एनहाइड्राइड के लिए इक अनहाइड्राइड मतलब फॉर्मिक अनहाइड्राइड. So what I'm trying to say is once you know this prefixes by heart, just take the prefix and add the appropriate suffix. जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स प्लस इक एसिड. एस्टर में हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं. पहले आर डैश का नाम लिखते हैं, देन आर का जो भी प्रीफिक्स है उसको ऐड करते हैं 8 के साथ, 18. असाइल क्लोराइड में जो भी आर का प्रीफिक्स है यू ऐड विद द वर्ड YL क्लोराइड. ऐड विद द वर्ड YL क्लोराइड. अमाइड में you just take the prefix and add the word amide, just amide. amide के लिए just amide है. और acid anhydride के लिए we have the prefix and add the word ic anhydride, ic anhydride, ic anhydride. और aldehydes के लिए prefix plus aldehyde. मतलब the beauty of this nomenclature is you are just supposed to know the name of the prefix properly, apply it and accordingly add the suffix correctly. Am I clear on this? Yes, everyone. Yes. Yes, sir. So let's name one of the compound with all the functional groups. R जब CH3 लेते हैं तो prefix का नाम है acid. So the aldehyde is called. First, aldehyde is called. When R is CH3, Acetaldehyde. acetaldehyde. Acid is called
Acetic acid. एसिटिक एसिड। एस्टर में लेट से आर डैश में था इथाइल है, तो इसका नाम Ethyl Ethyl acetate. acetate. इथाइल एसिटेट। असाइल क्लोराइड, acetyl Acetyl chloride, chloride. एसेटाइल क्लोराइड। अमाइड, acetamide, एसेटामाइड। और एसिड अनहाइड्राइड, Acetic acetic anhydride. anhydride. एसिटिक एनहाइड्राइड। मतलब आई एम नॉट completed one nomenclature, I have completed six nomenclature। सिक्स कंपाउंड्स के nomenclature सिर्फ इस प्रीफिक्सेस के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? नेक्स्ट, इसी कॉन्सेप्ट के साथ अगर मैं H को कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ लगाऊं, दे आर ऑल कार्बन फंक्शनल ग्रुप, तो टोटल कार्बन कंपाउंड में कितने हो जाते हैं? तो H जब लगता है CHO को, द टोटल कार्बन इज 1, then in the sequence 2, 3, 4, 5, 6, and aromatic में 7 हो जाएगा, because benzene itself has 6 carbon, with a CHO it will have 7। मतलब जो प्रीफिक्सेस है वो एक सीक्वेंस में ही याद रखना है, विद द टोटल नंबर ऑफ कार्बन रेंजिंग फ्रॉम 1 to 7। और ये अभी आप अपने फिंगर टिप्स पे याद रखो, उंगलियों पे, कि 1 इज फॉर्म एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर, वेलेर, किप्रो, एंड देन बेंजो। फॉर्म एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर, वेलुर, किप्रो एंड बेंजो। क्लियर है? याद हो गया एवरीवन? Yes, sir. Yeah. ओके। अब कीटोन्स के लिए अगर मैं बात करूं, तो कीटोन्स में दो टाइप के कीटोन्स हैं, सिंपल और मिक्स्ड। When we have a simple ketone, you just take one alkyl, name it as dialkyl, and add the word ketone, जैसे हम ईथर को नेम करते थे। और जब दो अलग अल्काइल ग्रुप है आर एन आर डैश, तो नेम द अल्काइल as alkyl 1, alkyl 2, of course arrange in the alphabetical order, and add the word ketone। तो जो भी अल्काइल है, जैसे इथाइल और मिथाइल हो, तो इट विल बी नेम्ड एज मिथाइल इथाइल कीटोन या इथाइल मिथाइल कीटोन। Ethyl methyl. इथाइल मिथाइल कीटोन। क्लियर है? अरे अंडरस्टूड। हाँ जी हाँ। Yes, sir. एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीफिक्स प्लस एक एसिड। आईयूपीएसी में यू नेम इट एज अल्केन ओइक एसिड। ओइक एसिड इज द सफिक्स इन आईयूपीएसी। तो जो भी पेरेंट अल्केन है एज पर द रूल, उसका ओइक एसिड लिखना है। ये हो गया आयुपैक। कीटोन का आयुपैक है अल्किनोन, अल्केन ओन, अल्केन ओन, ओन लगाना है। और अल्डिहाइड का आयुपीएसी है अल्केन अल, अल लगाना है। अल ओन ओइक एसिड, अल ओन ओइक एसिड, दैट्स aldehyde, ketone and carboxylic acids। क्लियर है ये? अब शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर। फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स से आई हैव CH3, CH, CH3 and CHO। Of course, the simple question, is it an aldehyde, ketone or acid? Aldehyde. Aldehyde. Aldehyde। अब सुनना ध्यान से, कॉमन नेम इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू टोटल कार्बन। कॉमन नेम टोटल कार्बन का होता है। एंड हाउ मेनी टोटल कार्बन डू यू सी? 4. 4. 4। अब फिंगर नंबर 4 पे क्या प्रीफिक्स था? Butyr. ब्यूटर। तो दिस पर्टिकुलर aldehyde will be called ब्यूटर aldehyde। ब्यूटर aldehyde। अच्छा, CHO पे लगा हुआ अल्काइल ग्रुप कौन सा है? विच अल्काइल इज दिस? Propyl. गलत। Egg propyl. सेक प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। सिर्फ प्रोपाइल Isopropyl. बोलना गुनाह था, गुनाह है और गुनाह रहेगा।
Remember, never say propyl. Never ever say propyl. Either you say n propyl या sec isopropyl. तो जब मैंने पूछा कौन सा ग्रुप है, यू शुडंट से प्रोपाइल, आपको बोलना है आइसोप्रोपाइल। तो ये आइसोप्रोपाइल का आइसो प्रीफिक्स आप ऐड कर लोगे ब्यूटारल्डिहाइड के पहले और हो गया नाम आइसो ब्यूटारल्डिहाइड। तो जो भी अल्काइल है उसका आप आइसो उठाना है, या जो भी न्यू होगा तो न्यू उठाओ, एंड जस्ट ऐड द प्रीफिक्स एंड द वर्ड अल्डिहाइड। 3 पार्ट में इसको नेम करना है। समझ में आ गया? अरे अंडरस्टूड। Yes. Yes. लेट्स से और एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। CH3, CH2, CH, CH3 एंड CHO। आशना, कॉमन नेम। Sir, it'll be an aldehyde. यस। टोटल कार्बन्स। क्विक, टोटल कार्बन। चलो आपके लिए रेफरेंस 5. ये लो। Hel- 5 मतलब Hello. कौन सा? यस, Valor. वेलर। ठीक है, So सो टोटल कार्बन 5, एंड उसके पहले क्या आएगा? sec यस, वेरी sec करेक्ट। sec butyl. नहीं, वेलर बोला ना आपने। हाँ, ये ग्रुप सेक ब्यूटाइल है तो उसका खाली सेक उठाना है, जो आपने ऑलरेडी बोल दिया, हाँ, एंड देन ऐड द वर्ड Valor. वेलर। हो गया नाम सेक वेलर एल्डिहाइड। हम्म, सेक वेलर एल्डिहाइड। समझा ये? पहले कॉमन नेम्स कर रहा हूँ, तो जस्ट पे अटेंशन। नामिया, द Yes. थर्ड वन। Neo. वेरी गुड, Caproaldehyde. सुपर। नियो बिकॉज इट इज नियोपेंटाइल। टोटल कार्बन इज 6, तो केप्रो उठाना है एंड ऐड द वर्ड अल्डिहाइड। तो जो कॉम्प्लेक्स वाले 3 केसेस थे, कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज अप टू प्रोपियोन तो हमारे पास सेक आइसो नियो ऐसा आता ही नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड, प्रोपियोन अल्डिहाइड, दीज आर 3 सिंपल अल्डिहाइड्स। डू यू ऑल अग्री? क्योंकि इनके कोई आइसोमर्स नहीं होते हैं। तो मैंने शुरू किया ब्यूटर से, बिकॉज इसके 2, फिर वेलर उसके 4, और केप्रो इसके 8 स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। उनमें कौन सा करेक्ट है उसके लिए आप अकॉर्डिंगली वो प्रीफिक्स उठा के नेम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रीफिक्स प्लस अल्डिहाइड वाला रूल। I've covered all of them now. एंड साथ में अरोमेटिक को कवर कर लिया तो पूरा कॉमन नेम्स हो जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर CHO का नाम तो हमें पता ही है, इट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। Benz. अब इस पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच कर लेते हैं, जैसे OCH3 और OH। तो दिस बिकम्स द कंपाउंड विच इज नेम्ड एज वेनिलीन। नाम से दिस इज द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वेनिला फ्लेवर। वेनिलीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेनिला फ्लेवर। अब ये वेनिलीन कंपाउंड को याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखेंगे? वेनिलीन इज एन अल्डिहाइड अरोमेटिक, मतलब बेंजल्डिहाइड, विथ व्हाट इज दिस ग्रुप कॉल्ड? methoxy, और ये वाला Alcohol. अल्कोहल नहीं, हाइड्रोक्स फिनॉल बोलना है। हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं या फिनॉल बोलो। क्यों? बिकॉज बेंजीन पे अटैच्ड है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, मेटा पे मिथॉक्सी है, मेटा का M, मिथॉक्सी का M, याद रखना सिंपल। और पैरा पे फिनॉलिक OH, पैरा का P, फिनॉल का P, फिनॉलिक OH। तो याद हो गया स्ट्रक्चर। तो आज के बाद जब भी वेनिला फ्लेवर या वेनिला आइसक्रीम खाओ, ये कंपाउंड याद रखने का, बेंजल्डिहाइड, मेटा पे मिथॉक्सी, पैरा पे फिनॉलिक। बराबर प्रियांश? हाँ, yes sir. ओके। तो अब हेल्प मी विद द IUPAC नेम, प्रियांश।
एक सेकंड। 3 मेथॉक्सी 4 फिनॉल बेंजोलिएट। नहीं, आप फिनॉल नहीं बोलेंगे ना, ओ प्रीफिक्स वाला नाम इज हाइड्रोक्सी, नॉट सॉरी। फिनॉल, हाइड्रोक्सी, यस। हाँ, 4 हाइड्रोक्सी और बेंज। पहले क्या आता है, एम या एच? एम। एम, एम के बाद एच आता है। हाँ। पक्का? नहीं बोल नहीं, वापस, एबीसीडी चेक एच कर। आता है। अच्छा, पक्का ना? हाँ। बाप रे। ठीक है, वो एक बार रिवाइज कर लेना, ए टू जेड आ जाएगा, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। So 4 hydroxy 3 methoxy and the parent of aromatic aldehyde called benzaldehyde. क्लियर है ये? Yes. चलो, तो अब IUPAC नेम पे जाते हैं। तो फॉर द फर्स्ट वन, IUPAC नेम, longest chain will be of 3. 3, numbering will be done. Anyways, no? ना, फंक्शनल ग्रुप कौन है? Right to left. यस, फंक्शनल ग्रुप is CHO. Now CHO is a terminal functional group, और टर्मिनल का मतलब होता है कि इसका पोजीशन हमेशा 1 होगा। 1 होगा, and the numbering will always be from CHO as 1 to 3 in this case. So up 2 पे there is a methyl and the parent of 3. How do we name aldehyde in IUPAC? Propane. Propane, Nat. al, Yeah. propanal. Okay, Nandini, IUPAC for second. Nandini, are you there? Yes, sir. हाँ बोलो, IUPAC longest chain. 4. And numbering. राइट से बोलो नाम। Right से left. नाम बोलो। 2 methanol methyl मिथेनल, no, sorry, 2 methyl butanol. 2 methyl butanol. Should be quick. Lisha, IUPAC for third. 3 comma, so it'll be right to left. Yes. 3 comma 3 dimethyl butanal. 3 dimethyl butanol. Okay. So Yeah. these are your common aldehydes. Now let's take some more examples for Sir, aldehydes. हाँ, if there's a double bond and CHO, तो ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिलेगा ना? नहीं, aldehyde का प्रायोरिटी ज्यादा है। All carbon वाला functional groups have a higher priority than double or triple bond. Okay. Check the priority again. I'll discuss some examples. Now, Oppa Gayatri. yes, Nandini? वो सुनाते हैं. Okay. What will be the name of this compound? जब cyclohexane पे CHO है. Of course, this is not aromatic now. It is alicyclic cyclohexane के ऊपर CHO. कार्बाल्डिहाइड. Yes, very good. अब यहाँ पर एक फंडा था कि whenever there is a CHO on the ring, इसका एक गलत नाम हो सकता है जो commonly mistake होता है, cyclohexane. What is the problem with this name? If I write cyclohexanal, it is wrong. मैं बता रहा हूँ wrong है, but क्या problem है इस नाम से? Because there are 7 carbons. Correct. Because there are 7 carbon. तो ये possible ही नहीं है. तो ये common mistake है. अब इसी mistake और problem को overcome करने के लिए उन्होंने rule दिया था कि whenever there is a carbon वाला functional group on the ring,
it will be named as कार्बल्डिहाइड. This is a special suffix. जैसे COH हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, CHO है तो कार्बल्डिहाइड. एंड देन जो भी रिंग का पेरेंट नेम है यानी साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड. राइट इट एज सिंगल नेम, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल. गॉट इट? इंपॉर्टेंट है. अब नेक्स्ट, let's say I have the aromatic ring CH double bond CH and CHO. सबसे पहले this is a compound which is commercially called cinnamaldehyde, and this is the compound responsible for cinnamon flavor, which is a spice. Cinnamon flavor के लिए responsible. ओके, ये तो हो गया कमर्शियल नेम, और ये सारे नाम याद रखने हैं कमर्शियल वाले. अब मुझे बताओ, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स डू यू सी? 3. 3. कौन कौन से? Benzyl, aldehyde and double bond. Benzene is not a functional group, it's an aromatic ring. आप उसको Diol. फंक्शनल ग्रुप में कंसिडर नहीं करते. दो ही फंक्शनल ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड कार्बन है और एक अल्डिहाइड है. अब प्रायोरिटी, Aldehyde. तो नंबरिंग अगेन विल बी डन फ्रॉम राइट, एंड नाउ द फिनाइल विल बिकम अ, Substituent. so the name will be Phenyl. 3-phenyl propanol. prop 2. prop 2 डबल बॉन्ड को क्या बोलने का? Ene. इन. और फिर अल, तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल का है. prop is the parent, double bond at 2, and अल can be written as 1 अल, या 1 को स्क्रैप भी करो तो चलेगा. It will be 3 phenyl prop 2 in अल. That's cinnamaldehyde का IUPAC. So you might get a question where they might ask you about IUPAC name of cinnamaldehyde is. Of course, तभी cinnamaldehyde का structure दिया नहीं जाएगा. You need to remember cinnamaldehyde and then name it in IUPAC, and that's important. Fine. Now Yes, sir. some of the, sorry, कुछ डाउट है? ओके, ये जो ब्यूटर है, दिस इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम बटर. इसका बटरी ओडर रहता है, एंड दिस इज एक्चुअली द मार्गरीन. प्रियांश के स्टॉल पे जो बटर रहता है, दैट इज नॉट अमूल बटर प्रियांश, मार्गरीन रहता है, राइट? हाँ, yes sir, agreed. ओके, तो ये ध्यान रखना कि आप जो खा रहे हो वो मार्गरीन रहता है. So that has buttery odor and it is found in margarine. Okay, so that's one information you remember. दूसरा information, as I said, vanillin, and तीसरा information cinnamaldehyde. तो ये हो गया हमारे aldehydes के important names. Now Sir. continuing further. Yes, So can you go back to the previous slide? yes. The cyclohexane carbaldehyde. That is the common Hmm. name of IUPAC. IUPAC इसका कॉमन नेम नहीं है. तो जहां पर एक ही नाम है वो बाय डिफॉल्ट उसका IUPAC नेम ही है. And your cinnamaldehyde is common name. कॉमन इसको कमर्शियल नेम बोलते हैं. अच्छा. यस, कॉमन नेम इसका नहीं है, कमर्शियल नेम है. Okay. जैसे एसिटिक एसिड हो गया, या फिर सोडियम कार्बोनेट जो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए नेम करते हैं, तो जो लेमेन्स लैंग्वेज में यूज करते हैं कॉमनली, वो कमर्शियल नेम्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते Got it, sir. हैं. अब जैसे हमने अल्डिहाइड्स के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कवर किए हैं, वैसे कीटोन्स कवर करेंगे एंड देन एसिड्स कवर करेंगे. तो एक एक स्लाइड में आपके सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स क्लियर हो जाएंगे.
Okay, let's start. Seventh one. I have CH3, CH2, C double bond O, CH2, CH3. सबसे पहले अल्डिहाइड कीटोन एसिड क्या है ये? Ketone. 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 Now, is it a simple ketone or mixed ketone? Simple. Simple ketone. Simple ketone because both the sides alkyl groups are same. ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि द गिवन कीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, सिंपल या मिक्स्ड? तो ये सिंपल, तो अभी कॉमन नेम क्या होगा? Diethyl ketone. दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है तो नेम द अल्काइल एज डाई अल्काइल एंड ऐड द वर्ड कीटोन, तो जनरलाइज नेमिंग दिया था मैंने। आयुपैक, लॉन्गेस्ट चेन, 5. 5, एंड सिमेट्रिकल है मतलब नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम Anywhere. एनीवेयर, एंड वी गेट द नेम अल्किनोन, Pentane 3. Pentane 3O. पेंटेन थ्रियो। नाउ यू ऑब्जर्व ओवर हियर कि कीटोन का जो पोजीशन है दैट कैन बी एनीवेयर in the middle of the chain. That's why here I need to mention the position in the IUPAC name. ठीक है, जैसे let's say next one. I have CH3, C double bond O, CH2, CH2 and CH3. Yes. Now simply mixed. 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 And what are the alkyls on the left and right? Methyl and N-propyl. Very good. Methyl and N-propyl. अब alphabetical order. Methyl propyl ketone. Methyl N-propyl ketone. Don't forget that N. बट एन हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं, तो एम पहले और उसके बाद प्रोपाइल का पी एंड देन एड द वर्ड कीटोन, वी गेट द नेम मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन। एंड आयुपैक, Pentane 2. Pentane 2O. Pentane 2 on. अब समझ में आ रहा है कि नंबरिंग हैज टू बी डन फ्रॉम द लेफ्ट साइड बिकॉज कीटोन इज नियर टू द लेफ्ट एंड हेंस पेंटेन 2। अब पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन एक दूसरे के क्या है? व्हाट्स द रिलेशन? Position isomer. Very good. They are position isomers. Position isomers. क्लियर है ये? Now, next example. Vihan, common name. So one second. Yeah. Butyl isopropyl ketone. सॉरी, ब्यूटाइल में कौन सा ब्यूटाइल बोला आपने? Butyl. गलत। No, sorry. Isobutyl. Isobutyl, sorry. Because it's primary and a T shape. It's not sec butyl. Sec butyl ये वाला है, आप सेकंड में देख रहे हो, दिस इज sec butyl। ओके, जहाँ पे CH पे फंक्शनल ग्रुप रहता है, यहाँ पे CH2 पे है। डोंट मेस अप इन द अल्काइल ग्रुप्स। तो आइसोब्यूटाइल का आई लेते हैं या बी इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर? B. नहीं, Islets. iso and neo are the only prefixes which we consider in the alphabetical order, meaning I लेना है। और आइसोप्रोपाइल का भी I। अब दोनों तरफ आई आई कैंसिल हो रहा है, सॉरी क्लैश हो रहा है, तो फिर ब्यूटाइल का B और प्रोपाइल का P will decide and hence the name will be isobutyl isopropyl ketone। isobutyl isopropyl ketone। तो इसमें can't we take sec propyl instead अगर clash हो रहा है तो? अरे बाबा, क्लैश हो रहा है तो स्ट्रक्चर थोड़ी आप चेंज कर सकते हो। सेक ब्यूटाइल इज दिस। अच्छा, आप प्रोपाइल के लिए बोल रहे हो? हाँ। हाँ, प्रोपाइल के लिए जनरली जो सेक प्रोपाइल है ना, दैट इज नॉट द कॉमनली यूज्ड नेम। वी ऑलवेज यूज द आइसोप्रोपाइल एज द नेम।
ठीक है, दो इट इज सेक एंड आइसो बोथ, बट नॉमेनक्लेचर में आप हमेशा आइसो ही, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में भी मैंने आइसो प्रोपाइल के हिसाब से आइसो लिया। ओके। ठीक है, अब आयुपैक नेम योहान, लॉन्गेस्ट चेन, आर यू देयर? Yes, sir. लॉन्गेस्ट चेन, 6. नंबरिंग, 1 second. From the right side. yes, because the ketone should get the lowest number. How many substituents now? 2. 1 1. 2 2 2 2 Two. 2. One on the left, one on the right. So it will be called 2 methyl 2 comma 5 methyl. dimethyl. हाँ 2,5 dimethyl hex सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड होता तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन। hex 3 in. है, अरे डबल बॉन्ड ओ है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ओ नहीं है, Sorry. Hexane. सॉरी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, तो हेक्स एन ही आएगा। हाँ। एंड पोजीशन 3 के साथ कीटोन है तो ओन हो जाएगा, हम्म। हेक्सेन 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन। So this nomenclature is also the revision of the alkyl groups and the nomenclature of the compounds जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किए, तो उसका भी थोड़ा रिलेशन आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब 10th वन, only IUPAC name. What is ketone with a cyclohexane called? साइक्लोहेक्सेन पे CHO को साइक्लोहेक्सेनल नहीं बोल सकते थे बिकॉज देर आर एक्चुअली 7 कार्बन। अब साइक्लोहेक्सेन पे कीटोन तो हो सकता है, तो व्हाट विल यू कॉल दिस? Cyclohexanone. Yes, cyclohexanone. And with respect to ketone, the aldehyde is at, sorry, the methyl is at. Two. methyl. So complete the name. Methyl 2-methyl cyclohexanone. cyclohexanone. 2-methyl cyclohexanone. 2-methyl cyclohexanone. Right? Next. Now let's say I have the aromatic benzene with a C double bond O and CH3. It's a famous compound of aromatic ketone. इसका जो कमर्शियल नेम है दैट इज एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ठीक है, सो ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, एसिटोफिनोन। एंड ऑल्सो द एसिटोफिनोन is having a smell of पिस्ता। तो पिस्ताशियो का जो फ्लेवर है या स्मेल है वो एसिटोफिनोन से रिलेटेड है। ओके, अब आयुपैक नेम, लॉन्गेस्ट चेन अब कितने कार्बन का होगा? 2. 2, and the numbering will be done from Left to right. ketone should get the lowest number, तो लेफ्ट वाला। अब this will be considered as, Substitute. Phenyl. it will be Phenyl. named 1-phenyl Ethane and 1-one. ethane 1-one. 1-phenyl ethane 1-one, that is IUPAC. अगर दोनों तरफ aromatic ग्रुप हो तो phenyl with C double bond हो, phenyl, this is called benzophenone। तो आपका जो अरोमेटिक का प्रीफिक्स है वो उठाना है और फिनोन ऐड करना है। फिनोन का मतलब फिनाइल कीटोन।
फिनोन इज फिनाइल का कीटोन। इसको डाइफिनाइल कीटोन भी बोलते हैं, बट मोर कॉमनली इट इज बेंजोफिनोन। अब आईयूपीएसी में लॉन्गेस्ट चेन One. One carbon. 1. एक ही है, और दोनों तरफ फिनाइल विल बी कॉल्ड, Diphenyl. Diphenyl. एंड एक कार्बन का पेरेंट वुड बी नेम। Four. वन उन की जरूरत नहीं है, एक ही Pentanone. कार्बन है, तो मिथेनोन। 1 डाइफिनाइल मिथेनोन। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज दिस? कितने रिंग्स आपको दिख रहे हैं? Two. 2। एक तरफ आप देखोगे साइक्लोब्यूटेन दिखेगा, राइट हैंड साइड पे भी देखोगे साइक्लोब्यूटेन। बेसिकली इट्स अ combination of two cyclic rings which are joined by two carbons. Such compounds are called bicyclic compounds. Bi मतलब दो, सॉरी। ये bicyclic ketone है, and this bicyclic ketone is actually the formula of camphor. Camphor यानी कपूर. कपूर। ठीक है, सब्लिमेबल कंपाउंड जो होता है, इट्स अ बाइसाइक्लिक कीटोन। अब इसका नॉमेनक्लेचर आपको नहीं है, बट जस्ट रिमेंबर दैट कैम्फर इज अ टाइप ऑफ डैश कीटोन। अगर पूछा तो यू हैव टू रिमेंबर, मतलब सिंपल, मिक्स्ड, अरोमेटिक या बाइसाइक्लिक, आंसर में बाइसाइक्लिक कीटोन याद रखना है। आगे CH3 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, CH3। आईपैक नेम। अब टू कीटोन्स टुगेदर विल बी कॉल्ड, Diketone. डायकीटोन। Diketone. Di- नहीं, आईयूपैक में, आईयूपैक। Dione. डायोन। Dione. Yes, and the parent will be of, 4 Four. 4. so it will be called ब्यूट 2, Butane. 3 Butane. 2,3. butane with the position 2, 2, 3 dione. Dione. Understood? तो ये जो फ्लेवर आपको दिखेगा, ये पॉपकॉर्न में दिखता है, मतलब पॉपकॉर्न में ये स्मेल रहता है, विच इज ऑफ ब्यूटेन 2, 3 डायोन। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 and CHO. अब how many functional groups do you see? 2. And the priority goes to Ketone. कीटोन। aldehyde. Aldehyde. अल्डिहाइड पहले आता है, फिर कीटोन आता है प्रायोरिटी में। ठीक है, चैप्टर के नाम में भी अल्डिहाइड पहले है, वैसे याद रखो कि अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड गेट्स अ प्रायोरिटी। बिटवीन अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, Carboxylic acid. Carboxylic acid. एसिड्स गेट द प्रायोरिटी। मतलब इस चैप्टर का प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर है एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन। रिपीट, एसिड, उसके बाद अल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन। So now, if the aldehyde is priority, ketone will become a. Substitute. Constituent. And what is the substituent name of ketone? Oxo. Oxo. Oxo या कीटो, दोनों चलता है। तो इसका आईयूपैक नेम में 4 पे जो कीटो है, तो आई कैन कॉल इट एज 4 कीटो या 4 ऑक्सो, दोनों चलता है। एंड द पेरेंट ऑफ 5 वुड बी कॉल्ड पेंटेनल। पेरेंट ऑफ 5 वुड बी कॉल्ड पेंटेनल। 2-methyl, 2 sir. मिथाइल। Sir, 2-methyl. ओ सॉरी, 2 मिथाइल भी है। तो ऑक्सो के पहले 2 मिथाइल आएगा। ठीक है, जनरली हम कीटो, एक्चुअली ओल्ड वाला है, ओल्ड नेम है। लेट मी राइट। तो जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए डिसाइड करते हो, तो ऑक्सो ही लेना है आपको।
E2 इज द ओल्ड वाला प्रीफिक्स, तो न्यू वाले में हमेशा ऑक्सो ही लेंगे, ठीक है। बट दोनों करेक्ट है, अगर ओल्ड नेम के हिसाब से भी जाए तो करेक्ट है, गलत नहीं है। नाउ कमिंग टू एसिड्स। नाउ एज आई डिस्कस्ड एट द स्टार्ट, जो भी अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर है दैट इज एक्सेप्टेड फॉर द एसिड ऑल्सो। खाली आपको सफिक्स में चेंज करना है, अल्डिहाइड की जगह एक एसिड। तो अब इसका कॉमन नेम, यस कार्तिक, Yes, sir. टोटल कार्बन्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 कार्बन का प्रीफिक्स, 5 कार्बन का प्रीफिक्स है वैलर। यस, तो सफिक्स आगे तो क्या एंड लगाएंगे? आइसो वैलर। और बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इक एसिड लगाना है। ओइक एसिड। नहीं, ओइक IUPAC में, कॉमन नेम में अच्छा, खाली एक है, ओइक नहीं है। तो पूरा नाम बोल। आइसो वैलरिक एसिड। आइजो, फिर 5 कार्बन तो वैलेर, तो आइजो वैलेरिक एसिड, आइजो वैलेरिक एसिड। IUPAC लॉन्गेस्ट चेन। तो मैं 4. आंसर करूँ? यस, राइट टू लेफ्ट। एंड नेम विल बी 3 मिथाइल 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड का, तो पेरेंट का नाम भूल गया। सॉरी, सॉरी, माय बैड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, माय बैड। हाँ, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, अगेन ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो यू कैन जस्ट कॉल इट एज ब्यूटेन ओइक एसिड। 1 लिखो ना लिखो, इट्स फाइन, बिकॉज ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका नॉमेनक्लेचर एग्जैक्टली अल्डिहाइड के जैसा ही है, जस्ट खाली अल्डिहाइड की जगह इक एसिड लगाना है और अल की जगह ओइक एसिड, बस। ओके, अब अल्डिहाइड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें ये वाला मोनो है बिकॉज कंटेन्स ओनली 1 COH। अब अगर मैं स्ट्रक्चर लिखो COOH एंड COH टुगेदर, तो ये हो गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। And this particular acid is very famous, important, called oxalic acid. Those COH combined is called oxalic acid. And what would be the IUPAC for 2COH? Dioxoacid. Di Oic acid. Dioic acid. Dioic acid. ठीक है। तो जो डाइओइक एसिड है उसके पहले पेरेंट 2 कार्बन का आपको दिख रहा होगा, सो इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। अब इस स्ट्रक्चर के बाद इफ आई जस्ट गो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन, आई गेट प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, फिर ब्यूटेन आ जाएगा, पेंटेन आ जाएगा, हेक्सेन आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ऐसा एक लिस्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, विच यू आर सपोज टू रिमेम्बर, ठीक है। अब नेक्स्ट, लेट्स से आई हैव CH2COOH, C पे OH and COH, and again CH2COH. How many COH now? 3. 3, मतलब ये हो गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका कमर्शियल नेम है सिट्रिक एसिड, विच इज द फेमस एसिड फाउंड इन Lemon. Lemon. लेमन, सिट्रस फ्रूट्स। लेमन्स, ऑरेंजेस में जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज सिट्रिक एसिड, जो सार रहता है, खट्टा रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से याद रखना है। अब इसका आयुपैक नेम, लॉन्गेस्ट नेम, 5. 5. अब यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है। 5 थियोरेटिकली करेक्ट है बट प्रैक्टिकली गलत है, बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग 5 कार्बन का पेरेंट, आप ये COH को सब्स्टिट्यूएंट मानोगे, बराबर।
हाँ If you take 5 carbon chain, then COH will be the substituent. अब प्रॉब्लम क्या होता है कि इस कंपाउंड में मेन फंक्शनल ग्रुप आपका COH है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप में अगर वो रिपीटेड है ट्वाइस या थ्राइस, तो ऑल ऑफ देम शुड बी गिवन इक्वल प्रायोरिटी। हम क्या कर रहे हैं, दो को प्रायोरिटी दे रहे हैं और एक को सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हैं, विच इज नॉट एडवाइजेबल एंड करेक्ट। दैट इज वाई उन्होंने क्या बोला, IUPAC रूल ने क्या बोला कि जब आपके पास कार्बन वाला कोई फंक्शनल ग्रुप है एंड इट्स रिपीटेड मोर देन ट्वाइस, दो में प्रॉब्लम नहीं होता है, बट 3 बार अगर रिपीटेड है ना, तो आप स्पेशल सफिक्स का यूज करोगे विच इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब तीनों को मैंने इक्वल प्रायोरिटी दे दिया, तो अब मेरा पेरेंट चेन 3 कार्बन का ही होगा, ना कि 5 कार्बन। और अब 2 पे जो OH है उसको बोलना है 2 हाइड्रोक्सी, और पेरेंट का नाम हो गया प्रोपेन। प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 डिफॉल्ट पोजीशन है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इज दिस क्लियर? 18th एग्जाम्पल। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी 3 COH हो तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एक स्पेशल वाला सफिक्स यूज करना है। ओके, 19। लेट्स से मेरे पास रिंग है, उसके ऊपर COH CHO, और ये अरोमेटिक है, तो यहाँ पे OH। अब प्रायोरिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड COH OH। तो अब CHO विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट अल्डिहाइड? फॉर्माइल। फॉर्माइन। करेक्ट। अब ये CHO ग्रुप आउटसाइड द रिंग है, मतलब ये आपके पेरेंट चेन में नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में यू हैव टू नेम दिस एज फॉर्माइन। तो अब वापस मैं बता रहा हूँ, ये आपका पेरेंट चेन हो गया 6 कार्बन का, विच इज ऑफ कोर्स द अरोमेटिक बेंजीन, एंड द CHO एज अ सब्स्टिट्यूएंट वुड बी कॉल्ड 2 फॉर्माइन। और 4 पे OH है तो उसका नाम हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्स 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी, एंड द पेरेंट ऑफ अरोमेटिक एसिड इज कॉल्ड, बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक नहीं एसिड। अल्डिहाइड बेंजोइक नहीं, एसिड सॉरी। बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। अब ध्यान से सुनना। लेट्स से मेरे पास OHC CH CH3 CH double bond CH and COH. How many functional group do you see? 3 थ्री। कौन कौन से? OH डबल बॉन्ड COH। OH नहीं है वो, ये अल्डिहाइड। CHO है। एल्डिहाइड। इट्स नॉट OH, ये CHO मतलब कार्बन चेन से कनेक्टेड लिखा है, फिर आपके पास डबल बॉन्ड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब प्रायोरिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक। तो उससे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का? 5। एंड नंबरिंग हमने किया 1 2 3 4 5। नाउ देर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, एक अल्डिहाइड है और एक मिथाइल है। अब 19 और 20 एग्जाम्पल में फर्क क्या दिखा? In the 19th example, the aldehyde was a substituent, but वो पेरेंट का पार्ट था नहीं कि था। नहीं था? नहीं था। नॉट अ पार्ट ऑफ पेरेंट, पेरेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। नंबरिंग चेक करो, मैंने उसको नहीं दिए। बट अब जो अल्डिहाइड है दैट इज part of the parent. पार्ट ऑफ द पेरेंट। तो मैंने आपको बोला था कि अल्डिहाइड में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वन इज फॉर्माइन एंड अदर इज ऑक्सो, एंड इसके 2 इंपॉर्टेंट यूजेस है। Formyl is used when the CHO is not a part of the chain. Oxo is to be used when the aldehyde is part of the chain. मतलब इस केस में the name will be 5-oxo and not 5-formyl. समझाइए एवरीवन। यस सर। यस सर। तो अब 4 पे CH3 is 4-methyl, 5 पे ऑक्सो लिखेंगे, नॉट फॉर्माइल।
ठीक है, तो फॉर्माइल लिख के मैं काटने वाला हूं सो दैट इट्स क्लियर कि ये वाला मिस्टेक आपको नहीं करना है। 5 ऑक्सो, फिर पेरेंट 5 कार्बन का है तो पेंट, सॉरी, Would you repeat the formal? यस, वापस मैं बता रहा हूँ। फॉर्माइल कब लिखना है? जब CHO पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है। तो 19th एग्जाम्पल में मैंने क्लियर लिखा है कि CHO इस केस में पेरेंट यानी अपने 1 to 6 वाले कार्बन का पार्ट नहीं है। मैंने उसको नंबर दिया है क्या? नहीं। नहीं, तो वो पेरेंट का पार्ट नहीं है। पर 20th में मैंने CHO को नंबर दिया है क्या? Yes. Yes. तो it is a part of the parent. So now, when the aldehyde is not a part of the parent, you call it as formyl and not oxo. लिख के काट रहा हूं ये, ठीक है। और नीचे जब अल्डिहाइड आपका पेरेंट का पार्ट है तो ऑक्सो लिखना है, फॉर्माइल नहीं। इसलिए अब नाम हो जाएगा 4 मिथाइल 5 ऑक्सो पेंट, पेरेंट 5 का है, 2 पे इन है और ऑइक एसिड आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है एकदम? Yes. Yes, sir. 21 CH2 डबल बॉन्ड CH पे COOH, दिस इज कॉल्ड एक्रिलिक एसिड। एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक पेंट्स वगैरह में जो एक्रिलिक कलर्स वगैरह आते हैं उसमें ये इंग्रेडिएंट रहता है। सो एक्रिलिक एसिड, आईयूपैक। अब लॉन्गेस्ट चेन 3. एंड विल बी नेम Propane to oic Propene. acid. प्रोप एन, एन क्यों लिखेंगे? Ene. प्रोप इन Prop एंड 2. वन ऑइक एसिड लिखे नहीं लिखे? Proptoine. ये बोल गया, प्रोप टू इन ऑइक एसिड, वन ऑइक एसिड इज डिफॉल्ट। अंडरस्टूड? Yes. So this covers the important nomenclature of aldehydes, ketones, and carboxylic acid, plus the combination of the functional groups together, यानी polyfunctional compounds भी covered है यहाँ पर. And there are lots of other examples which you will find in your digest as well as textbook. So इसके अलावा ये तो सारे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करनी ही है। स्ट्रक्चर लिखो, बुक बंद करो और खुद से नॉमेनक्लेचर करो। प्लीज प्रैक्टिस इट बिकॉज दिस इज, यू कैन से द लास्ट चैप्टर जहां पर ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स और उसका नॉमेनक्लेचर आप सीख रहे हो। तो अच्छे से कर लेना इसको कंप्लीट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। इन तीनों में कॉमन फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या था? Carbonyl. व्हाट वाज द नेम? कार्बोनाइल। Car- एंड कार्बोनाइल का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता sp2. है? sp2, यानी ज्योमेट्री क्या होगी? Planar. बॉन्ड एंगल 120. 120। ठीक है, so all aldehyde ketones and carboxylic acids are planar because of the presence of carbonyl, and the carbon of that is sp2 planar with a bond angle of 120 degree. और एक चीज, ये जो कार्बन है आज के बाद we will call it as carbonyl carbon because ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है और इसको हम बोलेंगे कार्बोनाइल ऑक्सीजन। और ऐसे ही रेफर करना है बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे रिएक्शंस हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, राइट? सो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर sp2 planar 120 degree. Now let's start with the preparation methods.
अब अच्छी बात यह है कि बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड्स आर रिपीटेड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स, 11th के चैप्टर से। बट अज्यूम ना करते हुए वी विल डिस्कस द रिएक्शंस। द फर्स्ट वन इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो ये हमने अल्कोहल्स के रिएक्शंस में भी किया है। एंड इफ यू ऑल रिमेंबर द स्टेटमेंट्स, अल्कोहल्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होता है। एंड अ प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फर्स्ट गिव्स a primary alcohol on oxidation first gives Aldehyde. Aldehyde. and aldehyde further oxidizes to Carboxylic acid. Ketone. carboxylic acid. Primary alcohol to aldehyde to acid, that is the sequence for a primary alcohol oxidation. But in this case, if I want to stop the reaction at aldehyde stage, what were the mild oxidizing agents used? एसिड तक जाने के लिए तो डाइक्रोमेट H+ को यूज कर सकते हैं। Pyridine. पाइरिडीन का एक कंपाउंड था, पीसीसी बोलते हैं उसको, हाँ जिसका फुल फॉर्म था पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और एक और नाम था पीडीसी, हम्म पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो अब सिंस ये अल्कोहल में हो चुका है, फिर भी आई डिस्कस जनरल रिएक्शन। हाउ डू यू राइट अ प्राइमरी अल्कोहल? CH2OH. CH2. Yes, very good. RCH2OH. The moment I say primary alcohol, you should speak it as RCH2OH. So primary alcohol on oxidation added with nascent oxygen with a mild oxidizing agent to stop at aldehyde like PCC or PDC. We'll change it to RCHO plus water. और जो भी प्राइमरी अल्कोहल का R है, कॉपी कॉपी पेस्ट पेस्ट। And statement to remember is a primary alcohol on oxidation gives an aldehyde. Correct? तो देखो, रिएक्शन याद रखने के लिए ना, मैंने आपको एक टेक्निक दिया था CTR, एंड ये CTR आप हर कंपाउंड के लिए यूज कर सकते हो, CTR टेक्निक। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन कन्वर्ट्स व्हाट टू व्हाट? Primary alcohol to aldehyde. टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? Oxidation. ऑक्सीडेशन। और रिएजेंट क्या है? Nascent oxygen. नहीं, रिएजेंट नेसेंट ऑक्सीजन नहीं बोलना है, पीसीसी पीडीसी बोलना है। तो ऐसे डायरेक्ट वन लाइनर वेरी शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, विच रिएजेंट ऑक्सीडाइजेस प्राइमरी अल्कोहल टू ओनली अल्डिहाइड बट नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड? तो आंसर में पीसीसी और उसका फुल फॉर्म पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पीडीसी पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट। हो गया आपका वन लाइनर आंसर सॉल्व। गॉट इट? तो CTR बहुत बहुत जरूरी है वंस यू अंडरस्टैंड द रिएक्शन एंड यू रिमेंबर ऑल द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ एनी रिएक्शन। क्या कन्वर्ट करता है, कौन से टाइप का रिएक्शन है, और क्या रिएजेंट है। ठीक है, जैसे इसमें प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट्स टू अल्डिहाइड वाया ऑक्सीडेशन यूजिंग पीसीसी पीडीसी। हो गया पूरा रिएक्शन। और इसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट करो तो आपका थियोरी हो जाता है। अब सेकेंडरी अल्कोहल कैसे लिखते हैं? CH3, CH2OH. CH3OH. CH3 तो एग्जाम्पल हो गया, पहले तो फंक्शनल ग्रुप CHOH लिखेंगे और जनरल सेकेंडरी अल्कोहल विल बी RN R डैश, RN R डैश। अब कीटोन्स को फर्दर ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट था, तो इसमें हम डाइक्रोमेट वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। मैकेनिज्म ये था कि H ऑफ OH, अल्फा का H एंड ऑक्सीजन तीनों मिलाकर H2O निकालता है, प्लस अब जो बचा दैट इज
a ketone. Again, CTR. This reaction converts. Everyone, this reaction converts Secondary alcohol to ketone. secondary alcohol to ketone via Dichrome. oxidation using K2Cr2O7H plus. ठीक है? ये same reaction can also be carried out by using directly copper at 573 Kelvin. मतलब इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं कॉपर एट 573 केल्विन. ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन था. कॉपर एट 573 केल्विन. ठीक है, इसको हम डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं. ये दो रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब दूसरा रिएक्शन, टू प्रिपेयर एल्डिहाइड कीटोन ओजोनोलाइसिस. ओजोनोलाइसिस तो याद रहेगा, तो इसका एक शॉर्टकट दिया था. डबल वन तोड़ो ओ जोड़ो. हाँ, डबल वन तोड़ो ओ जोड़ो. करेक्ट. डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो. तो ये शॉर्टकट को रिलेट करने के लिए पहले जनरल रिएक्शन. मान लो हमारे पास CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH और CH3 है. ठीक है, दिस इज 2-methyl butene. अल्किन का नॉमेनक्लेचर 2-methyl butene. Ozonolysis is carried out by adding O3 in presence of CCl4. अब ये रिएक्शन में the 3 ऑक्सीजन एटम में से 1 gets added between the carbon. तो सबसे पहले ना डबल बॉन्ड तोड़ दो, उसके बाद 3 ऑक्सीजन जोड़ने का एक तरीका बताया. क्या तरीका था? एक ऑक्सीजन दोनों के बीच में और बाकी 2 ऑक्सीजन आजू बाजू, एंड बेस को ज्वाइन कर दो बाय अ सिंगल बॉन्ड. तो ये घर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, और इस घर जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओजोनाइड. और फिर ये ओजोनाइड को हम ब्रेक करते हैं बाय एडिंग वाटर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक. और अब यहाँ पर जो येलो वाले बॉन्ड्स हैं उनमें ब्रेक डाउन होता है इन द शेप ऑफ वाई शेप में टूटता है. और ये वाई शेप में तोड़ने के बाद वाटर और ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाता है एज H2O2 प्लस. अब ये वाला पार्ट इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड ज्वाइन हो जाएगा. So it will give CH3C CH3 double bond O. What's the name of this? Dimethyl ketone. Which is also commercially called nail polish remover. Acetone. The simplest ketone is called dimethyl ketone, but acetone is important. And दो कार्बन वाला aldehyde, second वाला is called acetaldehyde. तो ये पूरा रिएक्शन है जो हम थियोरेटिकली लिखते हैं. बट अगर एमसीक्यू में आया तो करना क्या है? शॉर्टकट. इस पूरे रिएक्शन में डबल बॉन्ड टूट रहा है और फिर ऑक्सीजन जोड़ रहा है, इसलिए बोला था डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो. लेफ्ट साइड पे क्लियर डायरेक्ट एसीटोन दिख रहा है और राइट साइड पे एसिटल्डिहाइड. समझा? अरे अंडरस्टूड. Yes. अब थर्ड, ये भी रिपीटेड रिएक्शन है, तो अब तक मैंने कोई भी नया रिएक्शन नहीं करवाया है, रिपीटेड चल रहा है. हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस. हाइड्रेशन मतलब Water. वाटर. एडिशन. तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड CH है, जिसको हम टर्मिनल अल्काइन बोलते हैं. टर्मिनल बिकॉज द लास्ट कार्बन इज बॉन्डेड विद द H. हाइड्रेशन का मतलब पानी ऐड करना, एंड हियर द वाटर इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ 40% सल्फ्यूरिक एसिड along with 1% of HgSO4. 40% H2SO4, 1% HgSO4. अब this water will break down as H plus and OH minus. और अल्काइन सिमेट्रिकल दिख रहा है कि अनसिमेट्रिकल? So addition will take place according to MR. MR. And MR बोलता है प्लस जाएगा
C with less hydrogen. नहीं, प्लस जाएगा, C with more hydrogen. Negative will प्लस get जाएगा ज्यादा के पास, माइनस जाएगा कम के पास। प्लस जाएगा वो कार्बन के पास जहां पे ज्यादा एच है, और माइनस जाएगा उस कार्बन पे जहां पे कम एच है। समझाइए। यस और नो? Yes. Yes. अब ऐड करने के बाद वी गेट आर सी पे ओ एच, ट्रिपल विल चेंज टू Double. डबल, और सी एच पे एच आ जाएगा यानी Two. सी एच टू। अब दिस इज एन अनसैचुरेटेड अल्कोहल विच आर कॉल्ड इनॉल। अनसैचुरेटेड अल्कीन का अल्कोहल है तो इनॉल बोलते हैं, और इनॉल्स अनस्टेबल होते हैं, तो इन द स्क्वायर ब्रैकेट। और ये इनॉल स्टेबलाइज करते हैं बाय अंडरगोइंग अ रीअरेंजमेंट कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। एंड इफ यू रिकलेक्ट, टॉटोमेरिज्म में मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, इट्स अ रीअरेंजमेंट इन विच एक एच माइग्रेट होता है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। अब वो स्टेटमेंट में ये याद रखना था कौन सा एच कहाँ माइग्रेट होता है। एनीवन इफ यू रिमेम्बर टॉटोमेरिज्म? H will go to CH2. किसका एच? OH का. करेक्ट। तो आप ऐसे ही बोलोगे टू रिमेम्बर टॉटोमेरिज्म, एच ऑफ ओ एच, एच ऑफ ओ एच माइग्रेट्स टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, और इमीडिएट वाला डबल बॉन्ड नहीं, उसके बाजू वाला, एच ऑफ ओ एच माइग्रेट्स टू द डबल बॉन्ड कार्बन। बस ये एरो को याद रखना है। अब as I proceed with the structure, I'll get R, C and O will be joined by double bond, and double will change to single. What is the product form? ketone. Ketone. और ये कीटोन में खास बात है कि one of the alkyl is Methane. always methane, नहीं मिथाइल, अल्काइल। तो ये मिथाइल कीटोन है। मिथाइल कीटोन बोलने से हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एक अल्काइल तो भाई मिथाइल ही है, और बाकी जो आर है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? Alkyne. टर्मिनल अल्काइन से। तो कॉपी पेस्ट एंड यू गेट द आंसर। अब एग्जांपल, अगर मेरा आर एच है, आर एच है, तो सामने क्या बना? Ethyl. सॉरी, Aldehyde. कौन सा? नाम बोलो। Acetaldehyde. करेक्ट। अगर मेरा आर आर एच है मतलब इधर एच रखना है, तो अल्काइन का नाम क्या हो गया? दैट बिकम्स द फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट अल्काइन। व्हाट्स द नेम? फर्स्ट अल्काइन, Methyl. For इट्स एसिटिलीन। एसिटिलीन, आर इक्वल टू एच, फर्स्ट अल्काइन है एसिटिलीन, और उसका हाइड्रेशन वाटर के साथ एसिटल्डिहाइड देता है। तो मैंने अब एक एग्जाम्पल बना दिया कि जब आर एच है तो पूरा रिएक्शन तो आप लिख पाओगे, लेकिन अगर एमसीक्यू में आता है या वेरी शॉर्ट आंसर में आता है तो आप क्या करोगे? एसिटिलीन चेंजेस टू एसिटल्डिहाइड। अब दूसरा, आर इक्वल टू सी एच थ्री है, मीथाइल, तो अल्काइन का नाम होगा मीथाइल एसिटिलीन। मीथाइल एसिटिलीन, आर इक्वल टू सी एच थ्री, एंड वो तीन कार्बन वाला अल्काइन है विच इज कॉल्ड प्रोपाइन। तो ये अल्काइन का नॉमेनक्लेचर था। अब सामने हाइड्रेशन करके क्या मिलेगा? Acetone. एसीटोन। तो प्रोपाइन ऑन हाइड्रेशन गिव्स एसीटोन, दैट इज व्हाट यू कैन रिमेंबर। हो गए दो एग्जांपल। ठीक है, अब तीसरा, आर इक्वल टू फिनाइल है, फिनाइल, तो फिनाइल एसिटिलीन नाम होगा। तो ये तो अल्काइन का नाम, सामने क्या मिलेगा? toluene. नहीं, नहीं नहीं. बेंजीन पे सीओ सी एच थ्री, बेंजीन पे सीओ सी एच थ्री। Acyl. एक कमर्शियल नेम, पिस्ता फ्लेवर बताया था।
याद करो। Aceto. यस, एसेटोफिनोन। एसेटोफिनोन। फिनाइल पे कीटोन है तो फिनोन होता है, और मिथाइल ग्रुप को बोलते हैं एसेटोफिनोन, फाउंड इन पिस्ता फ्लेवर। ठीक है, तो मैंने एक जनरल रिएक्शन से आपको मल्टीपल एग्जाम्पल सिखाया कि जस्ट आप आर की जगह पे एच प्लेस करो, पूरा रिएक्शन लिखने के बाद एट द एंड यहाँ पे मिलेगा एसिटल्डिहाइड। जब आर मिथाइल है तो एसीटोन, आर फिनाइल है तो एसेटोफिनोन, ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल आप रिलेट कर सकते हो। क्लियर है बात? अब एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक मिथाइल है और एक इथाइल है। अब इज दिस अ टर्मिनल अल्काइन? No. तो क्या बोलेंगे इसको? अगर टर्मिनल नहीं है तो क्या बोलोगे? Not orbital. करेक्ट। तो यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड समवेयर इन द मिडल ऑफ द चेन है, तो नॉन टर्मिनल अल्काइन बोलेंगे। और इस नॉन टर्मिनल अल्काइन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? U2I. ब्यूट कैसे? ये कार्बन 5 होगा। 10-2. Pent to I. पेंट 2 आइन। अब इसमें भी पूरा मैकेनिज्म सेम है। पहले पानी ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 40% ऑफ H2SO4 मिक्स्ड विथ 1% ऑफ HgSO4। अब प्रॉब्लम है, यहाँ पर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे H ही नहीं है, तो मैं MR लगा पाऊंगा क्या? No. नहीं। तो अब MR नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर हम एक रूल को रिलेट करेंगे कि जो भी छोटा वाला अल्काइल है, जैसे मिथाइल और इथाइल में द स्मॉलर वन इज मिथाइल, उस पे जाएगा OH और H जाएगा बड़े वाले के पास। अभी याद रखने के लिए आप रख सकते हो, प्लस जाएगा बड़े वाले अल्काइल के कार्बन के पास और माइनस जाएगा छोटे वाले अल्काइल के कार्बन के पास। चलेगा? प्लस टू द बिगर अल्काइल एंड माइनस टू द स्मॉलर अल्काइल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो अब यहाँ पर आएगा CH3, C पे OH, ट्रिपल विल चेंज टू डबल, उस पे CH और C2H5। अगेन एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल मिला जिसको हम इनॉल बोलते हैं। उसके बाद उसका टॉटोमेरिज्म करेंगे। एंड टॉटोमेरिज्म में क्या स्टेटमेंट बोला था मैंने? OH का O, मतलब H goes to CH. OH का H गोज टू डबल बॉन्ड वाला CH। तो ये एरो खाली आपको रिलेट करना है। अब बताओ प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर। CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड C2H5। अब इसका नाम मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। Methyl मिथाइल N And प्रोपाइल कीटोन propyl. एंड IUPAC। So, 5 कार्बन का पेरेंट है ना। Pent to एन, एन पेंट के बाद एन इन आइन होना चाहिए। पेंट के बाद एन, उसके बाद पोजीशन 2 है तो पेंटेन 2 ऑन। तो ये हो गया पेंट 2 आइन ऑन हाइड्रेशन गिविंग यू पेंटेन 2 ओन। तो मैंने 4 एग्जांपल्स कवर किए हैं। बट अब आप कोई भी ग्रुप ले लो, कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, आपको ये 2 केसेस में से आइडेंटिफाई करना है एंड करेक्टली उस रिएक्शन को रिलेट करना है। क्लियर? Yes. yes. ठीक है। फाइन, चलो विल स्टॉप हियर। तो दीज वर द रिएक्शंस विच आर रिपीटेड फ्रॉम द 11th, एंड एक अल्कोहल का रिएक्शन था जो कि रिपीटेड है। और प्लस मैंने जो आज नॉमेनक्लेचर किया है, उस नॉमेनक्लेचर को अच्छे से रिवाइज कर लो। प्रैक्टिस ऑल द स्ट्रक्चर विदाउट लुकिंग इन द स्लाइड्स।
स्ट्रक्चर लिख लो और स्लाइड बंद करके खुद से सारे स्ट्रक्चर्स को नेम करो, ठीक है। प्लस जो एडिशनल एग्जांपल्स हैं फ्रॉम द डाइजेस्ट उसको भी कवर करने हैं आपको। तो दैट विल बी द होमवर्क फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? Sir, can you repeat the homework? तो होमवर्क विल बी ये स्लाइड्स के सारे एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं विदाउट कॉपिंग। प्लस आपके डाइजेस्ट में बहुत सारे और एक्स्ट्रा नॉमेनक्लेचर वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। सारे नहीं तो एटलीस्ट एक दो एग्जांपल्स, एक दो क्वेश्चंस आप उसमें से कर लोगे, सो दैट योर नॉमेनक्लेचर इज परफेक्ट। जिनका नॉमेनक्लेचर में डाउट्स है, इश्यूज है या अभी भी प्रॉब्लम आता है, वो लोग जितने एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं करो। मैंने अल्कोहल्स के टाइम पे भी बोला था, टेक वन पार्ट एट अ टाइम। Those who are not still comfortable with organic, this is the chapter which you can take it as a reference for building up your organic properly. पहला पार्ट लो नॉमेनक्लेचर, उसको पहले परफेक्ट कर लो। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है, कभी भी मैं कोई एग्जाम्पल के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, आपको नेमिंग ही समझ में नहीं आ रहा है, तो नाम समझ में नहीं आएगा तो रिएक्शन नहीं, रिएक्शन नहीं तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो सारी चीजों में प्रॉब्लम्स होता है। फाइन, Yes, sir. Thank you, sir. या